Hello, Bacho. So we are again back with another objective session today for BRS statement, that is Bank Reconciliation Statement. Again, a very important chapter, useful for your further studies also, and in your practical life also. It is very useful, right? So again, as I did it in the last session, answer in one sentence. I will take it at the end, right? So let us go to the second question, objective second question. Give one word, term, phrase which can substitute each of the following statement, right? One word objective, right? We are starting with the first particular statement. As I have already told you in all the lectures, if you wish, you can see the video in 1.5 speed so that you can save time. But when some concepts are being explained, I think you should keep it normal. Just the answer is not important. The explanation behind it is very important. Okay. So the first part, the account on which overdraft facility is allowed by bank. कौन से अकाउंट पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक अलाउ करता है? तो करंट अकाउंट के ऊपर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अलाउ करता है. इसका मतलब ये है that if you have savings bank account, on that overdraft is not allowed. Savings bank account, you can keep on depositing. Whenever you require, you can withdraw whatever amount is available in your account, not more than that. Overdraft facility is not available. So savings account is for personal use. आपका पर्सनल अकाउंट होता है वो सेविंग्स अकाउंट होता है, और बिजनेसमैन का बिजनेस अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट होता है. ऐसे हमें याद रखना है, राइट? और आगे जाते हैं. Extract of ledger account. So this is, I can write, I mean you can also write, that is current account. Extract of ledger account of account holder in the books of bank को क्या कहेंगे? तो हमने ये आपको बताया है, क्लास में भी हमने डिस्कशन किया है, इनिशियल स्टेज ऑफ बीआरएस चैप्टर, दैट बिजनेसमैन का अकाउंटेंट जो बुक बनाता है उसे हम कैश बुक कहते हैं, और ऐसे ही बैंक जो मेरा अकाउंट बनाता है उसे हम पासबुक कहते हैं. तो इसका आंसर आएगा पासबुक. Passbook is nothing but my account prepared by the bank. Okay, and I will prepare bank account. We call it as cash book. सर आप कैश बुक क्यों बोलते हो? अगर बैंक का अकाउंट है तो बैंक बुक बोलो ना भाई. हम कैश बुक इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज वन ऑफ द सब्सिडियरी बुक्स वी प्रिपेयर, और उसके अंदर 3 कॉलम हो सकते हैं, एक कैश कॉलम, एक डिस्काउंट कॉलम और एक बैंक कॉलम. हम बीआरएस जब पढ़ते हैं तब हम सिर्फ बैंक कॉलम की बात करते हैं. ओके, सो इसलिए हम बोलते हैं कैश बुक, लेकिन दैट इज बेसिकली आई एम प्रिपेयरिंग बैंक्स अकाउंट. मैं बैंक का अकाउंट बनाता हूं, बैंक मेरा अकाउंट बनाता है, राइट? बैंक जो बनाता है मेरा अकाउंट उसे हम पासबुक बोलते हैं. मैं जो बैंक का अकाउंट बनाता हूं दैट इज इन कैश बुक. क्लैरिटी शुड बी देयर. ओके. अल्फा न्यूमेरिक कोड that facilitates electronic funds transfer in India. The third one, ये आपको याद रखना जरूरी है. ये आप चेक्स के ऊपर भी देख सकते हैं, ये कोड लिखा होता है जिसे हम कहते हैं IFSC. आपको भी अगर कभी ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करना होगा, डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर, आपको IFSC कोड लिखना पड़ता है, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट. Statement showing the causes of disagreement between bank balance of cash book and passbook, we call it as bank reconciliation statement, BRS. यही तो चैप्टर का नाम है ना? Debit balance in passbook. Passbook का debit side is payment, credit side is deposits. So we call it as overdraft in passbook. Overdraft in passbook. I hope you all can see, read and understand. A form which is filled for depositing cash or check in the bank. ये फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पेन स्लिप बोलते हैं. ये भी इंपॉर्टेंट है. जो इंपॉर्टेंट है उसको स्टार मार्क करो. और बच्चों, अगर आपको याद होगा तो मैं मेरे लेक्चर्स में हमेशा प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी देता हूं, और ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट में बच्चों को मैं एक्चुअली बैंक में भेजता हूं. I make them understand what do you mean by all the process, all the documents in the bank. बैंक अपना रिकॉर्डिंग कैसे करता है, ये पूरा सेशन में मैं एक्सप्लेन करता हूँ. Where students also have to bring this pay in slip. तो अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको ये याद होगा, राइट? Left hand side of pay in slip, we call it as counterfoil.
आप जब चेक या कैश डिपॉजिट करते हो तो पेइंग स्लिप के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा छोटा होता है, राइट हैंड साइड थोड़ा बड़ा होता है। तो राइट हैंड साइड आप फिलअप करके बैंक को दे देता हूं, जो क्लर्क है ऑफिसर बैठा है उसको आप देते हो, और जो बाकी का लेफ्ट हैंड साइड वाला है काउंटर फॉइल वो हमारे पास में रहता है हमारे रिकॉर्ड के लिए, राइट, उसे हम काउंटर फॉइल कहते हैं। क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, कैश बुक का उल्टा होता है, डेबिट मीन्स फेवरेबल, क्रेडिट मीन्स ओवरड्राफ्ट, तो हम इसे कहेंगे ओवरड्राफ्ट इन कैश बुक। ऊपर का पासबुक था बाय द वे, ये कैश बुक है। ओवरड्राफ्ट O/D मतलब ओवरड्राफ्ट इन पासबुक, नंबर 5 में ओवरड्राफ्ट इन पासबुक आया था, नंबर 8 में ओवरड्राफ्ट इन कैश बुक आया है, ये आप दोनों वेरीफाई कर सकते हैं। अ बुक मेंटेन्ड बाय द ट्रेडर टू रिकॉर्ड द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, तो मैंने कहा कि जो बिजनेसमैन बुक बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, कैश बुक। एक्सेस ऑफ बैंक डिपॉजिट्स ओवर विड्रॉवल्स बाय बिजनेसमैन इन बैंक करंट अकाउंट, तो उसे हम क्या कहेंगे, अगर एक्सेस ऑफ डिपॉजिट्स ज्यादा है, ओवर विड्रॉवल, डिपॉजिट ज्यादा है मतलब मेरा बैंक में फेवरेबल बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं फेवरेबल। फेवरेबल बैलेंस इन बैंक, ऐसे मैं कह सकता हूं, राइट। check all the objectives, one word thing. Any doubt you can always ask me, as I've already told you. नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन, डू यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक रिप्रेजेंट्स बैंक अकाउंट, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, मैंने कहा है कैश बुक में 3 कॉलम होते हैं, बैंक आई मीन कैश, डिस्काउंट एंड बैंक, तो बैंक कॉलम रिप्रेजेंट्स व्हाट, बैंक अकाउंट, यस अग्री, करेक्ट है। बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट enables अकाउंट होल्डर टू प्रिपेयर BRS, बहुत जरूरी है, बैंक स्टेटमेंट में से ही पता चलेगा कि जो मैंने डिपॉजिट हुआ किया है चेक, वो मेरे बैंक अकाउंट में क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, मैंने जो इश्यू किया है वो प्रेजेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, एटसेट्रा, सो अग्री, यस करेक्ट। चेक्स इश्यूड फॉर पेमेंट बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक अपीयर्स इन कैश बुक ओनली, करेक्ट है, ये कैश बुक में ही रहेगा, नेचुरली, सीधी बात है, क्योंकि जो मैंने चेक इश्यू किया है नेचुरली मैंने, मेरे अकाउंटेंट ने कैश बुक में तो रिकॉर्ड किया ही होगा, लेकिन ये क्लियर ही नहीं हुआ है, प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, तो बैंक ने नहीं लिखा होगा, सो दैट अपीयर्स इन कैश बुक ओनली, करेक्ट है, अग्री। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ओनली ड्यूरिंग द ईयर एंड, नो, आप मंथ एंड में भी बना सकते हो, आप क्वार्टर एंड में भी बना सकते हो, ओके, सो डिसअग्री, डिसअग्री, disagree with this. Bank reconciliation statement is similar to bank statement, no, it is not a bank statement, disagree again, we do not agree with this, disagree, check करें, anyone any doubt you can ask me, everybody verify, I'm sure along with this understanding you are also writing it down, और आगे जाते हैं, okay, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज ऑलवेज इक्वल टू बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बच्चों जरूरी नहीं है, ये आइडियली स्पीकिंग ऐसा होना चाहिए लेकिन ये होता नहीं है कभी भी, और इसलिए तो हम BRS बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, बिकॉज बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक इज नॉट मैचिंग, दैट्स व्हाई वी प्रिपेयर BRS, है ना, सो वी डिसअग्री विद दिस, डिसअग्री, डिसअग्री, okay. बैंक एडवाइस इज सेंट बाय बिजनेसमैन टू द बैंक, नो, गलत, बैंक एडवाइस तो बैंक ही भेजेगा, बिजनेसमैन नहीं भेजेगा, डिसअग्री। पेन स्लिप इज यूज्ड, पेन स्लिप इज यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग चेक इनटू द बैंक, पेन स्लिप इज यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग चेक इनटू द बैंक, बरोबर है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, लेफ्ट हैंड साइड पेन स्लिप का छोटा होता है जैसे हम काउंटर फॉइल बोलते हैं, और राइट हैंड साइड जो बड़ा होता है वो चेक के साथ में अटैच करके हम बैंक में देते हैं, यस, तो अग्री। नेक्स्ट, डिफरेंस इन कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस में अराइज ड्यू टू एरर्स कमिटेड व्हाइल रिकॉर्डिंग, सही बात है, अग्री, और इसीलिए हम BRS बनाते हैं, अगर कोई एरर हमने रिकॉर्ड करते वक्त कर लिया, क्या एरर हो सकता है, एरर ये हो सकता है कि देखो अपार्ट फ्रॉम द टाइमिंग डिफरेंस व्हाट एरर्स कैन टेक प्लेस, मैंने गलत अमाउंट लिख दिया, मैंने गलत कॉलम में लिख दिया, है ना,
मैंने गलत साइड पे लिख दिया, ये एरर्स हो सकते हैं जिसके लिए हमें बीआरएस बनाना पड़ता है। और बच्चों ये बीआरएस बनाने के लिए मैंने बहुत इफेक्टिव मेथड बताया है जो मैं सीए लेवल पे भी समझाता हूं। यही मेथड मैंने बताया है ऑफ मूविंग द हैंड्स, अंडरस्टैंडिंग द बैलेंस, वेदर विच साइड बैलेंस इंक्रीज, कैश बुक इंक्रीज और डिक्रीज, पासबुक इंक्रीज और डिक्रीज। ये सेम पार्ट मैंने बच्चों को पढ़ाया है, इवन 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स कैन डू इट। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन you can solve in the examination with my technique hardly in 8 minutes. 8 minutes done, you will get your 10 marks, right? So you can definitely apply this. Payment and receipt of cash through internet banking generates automatic proof. तो ये ऑटोमेटिक प्रूफ क्रिएट करता है बिकॉज इंटरनेट बैंकिंग में एक रिसीट जनरेट होता है विच इज डायरेक्टली बीइंग सेंड टू द नंबर, मोबाइल नंबर होल्डर बाय एसएमएस। तो ये ऑटोमेटिक प्रूफ जनरेट करता है। यस, अग्री, राइट बच्चों। तो यहां तक हमने पढ़े हैं अग्री डिसएग्री पार्ट, वन वर्ड पार्ट, एंड नाउ वी विल बी मूविंग ऑन पॉइंट नंबर 4, select the most appropriate alternative from those given and rewrite the following statements. So we are moving on the next session. Select the most appropriate alternative. Overdraft means dash balance of cash book. कैश बुक का डेबिट फेवरेबल होता है, क्रेडिट ओवरड्राफ्ट होता है। सो द आंसर इज क्रेडिट बैलेंस। When a check is deposited and collected by bank, पासबुक में डिपॉजिट्स क्रेडिट में होते हैं, पेमेंट डेबिट में होते हैं, तो पासबुक इज क्रेडिटेड। ओके। थर्ड, a dash is a summary of financial transactions that take place over a period of time on a bank account. बैंक अकाउंट का जो भी समरी होता है वो हमें कैसे मिलता है? by way of a statement, we call it as bank statement. So the answer is bank statement. Debiting an entry in cash book dash cash balance. कैश बुक में डेबिट साइड इज डिपॉजिट्स, अगर डिपॉजिट किया है तो बैलेंस बढ़ेगा, है ना? तो बैलेंस इंक्रीजेस। आई एम श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन? बीआरएस कौन बनाता है? नेचुरली बिजनेस मैन बनाएगा, ओनर बनाएगा। So it is being prepared by the businessman. Bank balance as per passbook means dash balance of passbook. Bank balance as per passbook means passbook में पॉजिटिव बैलेंस है तो ये फेवरेबल कहा जाएगा या क्रेडिट कहा जाएगा। ओके, तो हम बोलेंगे इट इज क्रेडिट बैलेंस पासबुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक। फेवरेबल भी बोल सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस भी हम बोल सकते हैं। और आगे जाइए, नंबर 7, बैंक गिव्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू डैश अकाउंट होल्डर। ये मैंने कहा है कि सेविंग्स बैंक अकाउंट हो जो होता है वो बिजनेसमैन का पर्सनल अकाउंट होता है, और करंट अकाउंट जो होता है वो बिजनेस अकाउंट होता है ना? सो बैंक गिव्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ओनली टू द करंट अकाउंट होल्डर। नंबर 8, Debit balance as per cash book is also known as dash balance. कैश बुक में डेबिट मतलब पॉजिटिव या फेवरेबल, है ना? तो हम बोल सकते हैं फेवरेबल बैलेंस। चलो चेक करें। When extracts of cash book and passbook are given for uncommon period, only common items are to be considered. ये मैंने आपको समझाया है। When common ones are there, pick up uncommon item. अनकॉमन आइटम मतलब क्या? जो कैश बुक और पासबुक में सेम नहीं है वो अनकॉमन है, कॉमन नहीं है। बट व्हेन अनकॉमन मंथ्स आर गिवन लाइक जनवरी एंड फेब्रुअरी गिवन, देन टेक कॉमन आइटम्स। कॉमन आइटम्स मींस अपियरिंग इन बोथ द स्टेटमेंट। ओके, तो यू कैन राइट हियर कॉमन। Likewise, when extract of cash book and passbook are given for common period, okay, only, then pick up uncommon item. Uncommon item you have to pick up. Uncommon. राइट इसके कनेक्टेड हमने मल्टीपल क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व किए हैं और ये फंडा बहुत क्लियरली हमने डिस्कस किया है। इनफैक्ट ये वाले पार्ट जो है ना, दीज बोथ, इसको आप स्टार मार्क करना, क्योंकि कई बच्चों ने जिसने ये सॉल्व नहीं किया होगा, समझा नहीं होगा, वो कंफ्यूज होंगे, है ना? उनको दे विल हैव टू मग इट अप। बट ये बड़ा सिंपल है और बहुत लॉजिकल है। इनफैक्ट ये बड़ा ही सिंपल है और ये सॉल्व करने में टाइम भी कम लगता है ना? Check it. If any doubt, you can ask me. We are moving further.
Now we are moving on the next section, that is complete the following statements. Payments credited in cash book are, पेमेंट जो हमने कैश बुक में क्रेडिट किया है आर पासबुक में कहां पे जाएगा? पासबुक का जो क्रेडिट होता है वो डिपॉजिट होता है और डेबिट होता है वो पेमेंट होता है, तो डेबिटेड इन पासबुक are being debited in passbook. While preparing BRS, dash column of cash book is being considered bank column. है ना, मैंने ये बताया है आपको कि कैश बुक में 3 कॉलम होता है, कैश, डिस्काउंट एंड बैंक। तो हमें कंसर्न है बैंक कॉलम से, हमें कैश कॉलम से कंसर्न नहीं है, बैंक कॉलम से कंसर्न है। चेक्स इश्यू टू क्रेडिटर, मतलब हमने पेमेंट किया है, अपीयर फर्स्ट इन डैश बुक। नेचुरली हमने इश्यू किया है तो हमारे कैश बुक में ही पहले अपीयर होगा, फिर वो चेक हम क्रेडिटर को देंगे, क्रेडिटर अपने बैंक में डिपॉजिट करेगा, तब जाके पैसा बैंक में जाएगा और तब जाके हमारे बैंक में डेबिट होगा। तो फर्स्ट अपीयर्स इन कैश बुक, ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। इसको भी आप स्टार मार्क करो, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, a statement showing the reasons for difference in cash book and passbook balance is known as, बड़ा सिंपल है, चैप्टर का नाम ही है BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओवरकास्ट ऑन रिसीट साइड ऑफ पासबुक मींस डैश इन पासबुक बैलेंस। बच्चों ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है? ओवर मतलब ज्यादा, कास्टिंग मतलब टोटलिंग। ओवरकास्ट ऑन रिसीट साइड ऑफ पासबुक, रिसीट साइड मतलब क्रेडिट साइड, मींस डैश इन पासबुक बैलेंस, मींस आपका इंक्रीज इन पासबुक बैलेंस भी आप बोल सकते हैं, या क्रेडिट इन पासबुक बैलेंस भी बोल सकते हैं। हम यहां पे लिख सकते हैं इंक्रीज। रिसीट बढ़ा तो नेचुरली इंक्रीज हो गया होगा, है ना। ऑनलाइन ट्रांसफर मेड टू अवर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब जिसको मुझे पेमेंट करना है, अपीयर ऑन डैश साइड ऑफ कैश बुक। पेमेंट साइड कौन सा साइड होता है कैश बुक का? क्रेडिट साइड, तो अपीयर्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। क्रेडिट साइड इज पेमेंट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक इज डैश इन पासबुक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मतलब मेरा पैसा गया, पेमेंट, पेमेंट साइड, पासबुक का पेमेंट साइड कौन सा है? डेबिट साइड है, पासबुक का पेमेंट साइड इज डेबिट। Normally, the cash book shows debit balance and passbook shows dash balance. कैश बुक का अगर डेबिट है तो पासबुक का क्रेडिट होना चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट। The form filled for withdrawing cash from bank is known as withdrawal slip. ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों को ये नाम याद नहीं होता है। विड्रॉवल स्लिप, हाँ स्टार करो। A businessman can update his records on receiving bank advice, ये भी स्टार करो। बैंक एडवाइस, आप बैंक एडवाइस भी बोल सकते हो या बैंक मेमो भी बोल सकते हो, हाँ, बिकॉज whenever some direct instructions are given to bank and bank has made payment on our behalf, then bank will send us a memo or maybe bank advice. Bank advice is very predominantly being used, तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, राइट। चेक करो बच्चों, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। And with this, we are moving on the next section, which is state whether the following statements are true or false with reasons. Okay, तो बच्चों, the next part is about draft the following specimen with imagery name, account number and amount. ये मैं थोड़ा बाद में इसे पिकअप करता हूँ। Let me take the next one, and that is correct and rewrite the following statement. जो स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट है कि नहीं है, अगर करेक्ट है तो ठीक है, अगर करेक्ट नहीं है तो इसमें क्या करेक्शन होना चाहिए, राइट। द फॉर्म फिल्ड फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इनटू बैंक इज नोन एज पासबुक। ओके, द फॉर्म फिल्ड फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इनटू बैंक इज नोन एज पासबुक। इट इज फॉल्स बेसिकली, ओके, इट इज फॉल्स। करेक्ट है कि नहीं है? फॉल्स। इट इज कॉल्ड एज पेन स्लिप, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पेन स्लिप बोलते हैं, है ना। पेन स्लिप
में दो पार्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड काउंटर फॉइल, राइट हैंड साइड वी हैव टू जस्ट tear it off and attach with the whatever check or cash we have to give to the bank. So that is false. Don't go by this T. T means basically textual. So this is false, by the way. So don't misunderstand the things. It is false. Bank reconciliation statement is prepared by the bank. False. False. It is prepared by the businessman, not by the bank. When a check is deposited into bank, it is credited in cash book. False. It is debited in the cash book. Cash book का debit side is deposit, credit side is payment. WIP I used to write, right? Withdrawal, issue, payment, है ना? When a check is deposited into bank, it is debited in passbook, or it is when a check is deposited in the bank, it is credited in passbook. ऐसा होना चाहिए. Anyway, forget it. Debit balance as per passbook is known as favorable. Wrong. Debit balance means unfavorable, or overdraft balance as per the passbook. Electricity bill paid by the bank on behalf of customer first appears in cash book. False. It first appears in the passbook. क्योंकि डायरेक्टली बैंक ने पेमेंट किया है. That must be the standing instruction. So वो पासबुक में अपीयर होता है पहले, फिर बैंक एडवाइस हमें मिलता है बिजनेसमैन को, और फिर बिजनेसमैन का अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है कैश बुक में. सो इट फर्स्ट अपीयर्स इन द पासबुक. When extracts are given for common period, only common items are to be considered. False. Only uncommon items are to be considered. When common period, then consider uncommon items. When uncommon period, consider common items. That is the rule I have explained to you. आपकी जानकारी के लिए, जब मैंने आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी दिखाया था ना, तो इसमें हमने ये पॉइंट नंबर 4 में ये लिखाया हुआ है, आप देख सकते हो. यू कैन चेक इन द ऑन द स्क्रीन, इट इज अपियरिंग. When in the question we are given cash book as well as passbook, then check if common months, then take uncommon items. When uncommon months are given, take common items, right? ऐसे आप देख सकते हो, मैंने सारा का सारा थ्योरी आपको समझाया हुआ है क्लासरूम में. ओके, ऐसे डायग्राम के साथ में व्हाट इज द बैंकिंग सिस्टम इज बीइंग फॉलोड, व्हाई देयर इज टाइमिंग डिफरेंस, ये सारा हम क्लास में डिस्कशन करते हैं बच्चों. आई डू दिस फॉर the conceptual understanding of the students. So at our classes, we put more emphasis on concepts rather than just the solutions. Temporary solution काम नहीं आता है. Permanent solution is understanding the concept. तो आपको clarity मिलेगा. Moreover, you will get interest in the subject. Subject will be more loving to you. You know, so that is possible with the concepts. Okay, coming back, going ahead. So I'm sure this part is clear to you all. And I'm going on the specimen now. ओके, बैंक स्टेटमेंट. बैंक स्टेटमेंट का स्पेसिमेन कुछ इस प्रकार से होता है. आपको करंट अकाउंट होगा, जो भी पर्सन है उसका यहाँ पे नाम लिखा होगा, जो भी आइडेंटिटी है, एंटिटी है, उसका नाम होगा. लेफ्ट हैंड साइड पे बैंक का नाम होगा, यू कैन चेक. एंड व्हाट इज अ पीरियड, दैट पीरियड मस्ट बी रिटन ओवर हियर. यहाँ पे पीरियड लिखा होना चाहिए, बाय द वे. पीरियड ऑफ द स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा होना चाहिए. यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, अकाउंट नेम, डेट, पर्टिकुलर्स, चेक नंबर, अमाउंट, विड्रॉवल और डिपॉजिट. क्योंकि पासबुक में डेबिट मींस विड्रॉवल, क्रेडिट मींस डिपॉजिट्स, एंड देन द बैलेंस, राइट. सो दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ बैंक स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्पेसिमेन, पेन स्लिप. हाँ, पेन स्लिप. तो अगर हमें चेक या कैश डिपॉजिट करना है तो हम एक स्लिप, बैंक का ही एक डॉक्यूमेंट होता है, स्लिप यूज करते हैं, जिसका लेफ्ट हैंड साइड काउंटर फॉइल, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये काउंटर फॉइल बोलते हैं हम इसको. दिस काउंटर फॉइल CF. ओके, राइट हैंड साइड वी सबमिट टू द बैंक along with कैश और चेक एज द केस में बी. ये स्पेसिमेन है. इतना डिटेल्ड जो अंदर लिखा हुआ है वो आपके लिए मुश्किल है बनाना, बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस. यू कैन गो टू एनी बैंक एंड जस्ट आस्क फॉर द पेन स्लिप, and that is free of cost. I mean, you can just take it. It is just one leaf, one paper, so that you can check, you can take, and you can keep in your working book as understanding of the specimen. That is allowed. Next is withdrawal slip. बच्चों, विड्रॉल स्लिप में काउंटर फॉइल नहीं होता है, क्योंकि ये विड्रॉल स्लिप भर के आपको बैंक को देना पड़ता है. बैंक को अपने पास ही रखेगा और आपको सामने पैसा देंगे.
आपके अकाउंट में पैसा होगा तो, हाँ, आप ऐसे ही कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। सो दिस इज विड्रॉवल स्लिप, बाय द वे यू कैन चेक द फॉर्मेट। नेक्स्ट इज बैंक एडवाइस। बैंक एडवाइस कब आता है? जब बैंक ने ट्रांजैक्शन किया है और हमने नहीं किया है, मतलब बिजनेसमैन ने नहीं किया है, तो टू इन्फॉर्म टू द बिजनेसमैन बैंक सप्लाइज दिस बैंक एडवाइस। उसमें कंटेंट लिखा होगा कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, and due to this your account has been debited or credited, what has happened, that will be provided to you, right? So आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पार्टी का नाम है, मतलब बिजनेसमैन का नाम है, ये बैंक का नाम है, यहाँ पे डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, क्या ट्रांजैक्शन हुआ है नीचे लिखा हुआ देखो, योर टेलीफोन बिल इज पेड एज पर योर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, हाउ मच इज द अमाउंट एंड व्हाट इज बीइंग डेबिटेड, 5000 इज बीइंग डेबिटेड। अगर कोई कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट किया होगा तो बैंक मेरा क्रेडिट हुआ होगा, तो यहाँ पे क्रेडिट में अमाउंट आएगा, पर यहाँ पे बैंक ने पेमेंट किया है तो पासबुक विल बी डेबिटेड। सो दिस इज द बैंक एडवाइस ऑफ वन पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ ऑन द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हमारा टेलीफोन बिल पे हुआ है, ऐसा होता है ना कि कुछ मंथली पेमेंट है, जैसे टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल, वो हमें पे करना ही है, तो हम बैंक में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं एंड इट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द बैंक डायरेक्टली, दैट इज पॉसिबल, दैट इज बैंक एडवाइस बैंक विल प्रोवाइड टू बिजनेसमैन। नेक्स्ट, पासबुक का एक स्पेसिमेन है, यहाँ पे चेक करो। पासबुक में आपको सिमिलर टू लाइक बैंक स्टेटमेंट आप बोल सकते हो, सिमिलर है, यहाँ पे डेट लिखा होगा, पर्टिकुलर लिखा होगा, चेक नंबर होगा, अमाउंट विड्रॉन तो ये डेबिट होगा, अगर डिपॉजिट होगा मतलब क्रेडिट होगा, एंड द बैलेंस। सो पासबुक एंड बैंक स्टेटमेंट मोर और लेस आर सिमिलर, यू कैन अंडरस्टैंड। टॉप पे पार्टी का नाम भी लिखा होगा, मतलब पार्टी माने अकाउंट होल्डर, करंट अकाउंट होल्डर का नाम लिखा होगा, ये डेटा भी होगा, राइट? दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड स्पेसिमेन, बट यू शुड नो द स्पेसिमेन। ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब कभी बैंक में जाएंगे या कोई बैंक ट्रांजैक्शन अप्लाई करेंगे, you should know that how the form of specimen is going to be, right? So again and again I am telling you बच्चों, your practical knowledge is more important. This is a practical subject, not merely a theory, right? आपके लिए बहुत जरूरी है। You must visit the bank, possibly tell your parent that please give me some bank work। अगर आपका 10th का वेकेशन है, 12th का वेकेशन है, 11th का वेकेशन है, whatever, start going into such commercial organizations। आपके पेरेंट्स को बोलो कि आप बैंक का जो भी काम है मुझे बताइए, आई विल डू इट। शायद क्या होगा, फर्स्ट टाइम शायद आपको कुछ सुनना पड़ेगा, देयर विल बी लिटिल फेलियर्स, बट दैट विल बी योर स्टेपिंग स्टोन, यू कैन गो अहेड विथ, राइट? कंप्लीट द टेबल। ओके, यहां पे आपको ट्रांजैक्शन दिया हुआ है और बताया गया है कि कैश बुक में एड या लेस क्या होगा, ये आपको बताना है। व्हेन नॉर्मल बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, एड और लेस क्या होगा, एंड व्हेन नॉर्मल बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन तो क्या होगा। बच्चों मैंने आपको एक हैंड मूवमेंट लेवल समझाया है, ओके? कोई भी ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक बढ़ेगा या घटेगा, पासबुक बढ़ेगा या घटेगा, देन फ्रॉम वेयर टू वेयर यू हैव टू गो, इफ यू हैव टू गो फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक। अगर कैश बुक बढ़ा है, ओके, तो कैश बुक से पासबुक में जाने के लिए लेस करो, अगर कैश बुक घटा है तो कैश बुक से पासबुक में जाने के लिए ऐड करो। ये मैंने आपको मेथोडोलॉजी समझाया है, सेम अप्लाई करना है, वेरी सिंपल। आप देखो, चेक करो। मैं पहले ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करता हूं, देन आई विल कम ऑन द सेकंड पार्ट। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इंटरेस्ट डेबिटेड इन पासबुक, ये मेरा कैश बुक वाला हैंड है, ये मेरा पासबुक वाला हैंड है। इंटरेस्ट डेबिटेड इन पासबुक मतलब पासबुक का बैलेंस घट गया, राइट? अब मुझे कहा है कैश बुक बैलेंस इज गिवन, मुझे कैश बुक से पासबुक में जाना है तो मुझे लेस करना पड़ेगा। देखो आंसर इज लेस। नेक्स्ट, डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर इन द बैंक रिकॉर्डेड इन पासबुक, डायरेक्टली बैंक में रिकॉर्ड हुआ है तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है, मुझे कैश बुक से पासबुक की तरफ जाना है तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। सी द आंसर, ऐड। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, हमने चेक डिपॉजिट किया है मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड किया है तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, कैश बुक से पासबुक में जाना है तो लेस करना पड़ेगा, चेक। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इज डिसऑनर्ड, मैंने पहले डिपॉजिट किया था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको स्टार करो। मैंने डिपॉजिट किया था तो ये कैश बुक बढ़ा, बैंक ने भी रिकॉर्ड किया होगा, बाद में डिसऑनर हो गया तो पासबुक में लेस हो गया, अब कैश बुक से पासबुक में जाने के लिए लेस, चेक करें। ये प्रोसेस आप ध्यान से इसको रिपीटेडली देखना, मैंने क्या किया था, हाँ आपको काम में आएगा, बी केयरफुल।
लास्ट वन, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने चेक इश्यू किया था, मतलब कैश बुक में मैंने रिकॉर्ड किया था इश्यू मतलब पेमेंट, ये कम हुआ था। नाउ कैश बुक से पासबुक में जाना है, ऐड, चेक दिस। बच्चों ये प्रोसेस आप ध्यान से रिव्यू करना, मैंने जो कहा है और मैंने एक्शन दिखाया है आप वो अगेन चेक करना, आपको ये डेफिनेटली काम में आएगा। अब मैं सेकंड पार्ट, सिमिलर ट्रांजैक्शन फ्रॉम द सेकंड पार्ट एंगल, यहां पे मैं पासबुक से मुझे जाना है कैश बुक की तरफ, पासबुक से कैश बुक की तरफ जाना है, तो हम क्या करेंगे देखना ध्यान से। इंटरेस्ट डेबिटेड इन पासबुक, हाँ ये कैश बुक है ये पासबुक है, इंटरेस्ट डेबिट हो गया, डेबिट मतलब विड्रॉवल, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, अभी मुझे पासबुक से कैश बुक की तरफ जाना है, ऐड। आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये इक्वल एंड ऑपोजिट हो रहा है, लेकिन आपको कंसेप्ट के साथ में जाना है, बी केयरफुल। नेक्स्ट वन, डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर इन द बैंक रिकॉर्डेड इन पासबुक। डायरेक्ट डिपॉजिट, ये कैश बुक है पासबुक है, सीधा पासबुक में आ गया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक से कैश बुक लेस, चेक करें। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। मैंने डिपॉजिट किया, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ, कैश बुक बढ़ गया, पासबुक से कैश बुक, ऐड, चेक करो। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक डिसऑनर्ड, ये दोबारा मैं आपको री एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड, तो पहले मैंने ये कैश बुक और ये पासबुक है, कैश बुक में पहले डिपॉजिट किया होगा, पासबुक ने भी पहले रिकॉर्ड किया होगा, फिर डिसऑनर हो गया तो पासबुक ने कम कर लिया, अब पासबुक से कैश बुक की तरफ जाना है, ऐड, चेक करो। इसको रिव्यू करना बच्चों, पॉसिबली 3 से 4 बार देखना, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मैंने सिर्फ कैश बुक में इश्यू किया है, कैश बुक घट गया, पासबुक से कैश बुक लेस, चेक करें। राइट बच्चों, सो दिस वाज आवर पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस टू बी रिकॉर्डेड, और अब मैं लास्ट पार्ट पे जा रहा हूं, एंड दैट इज योर आंसर इन वन वर्ड पार्ट। Maximum parts are being done. Answer in one sentence part. What is pay in slip? हमने already discuss कर लिया है, right? It's a form provided by the bank which is to be filled by the customer and submitted at the time of depositing cash or check in their account. What is withdrawal slip? पैसा withdraw करने के लिए एक document है. Withdrawal slip is filled and submitted to the bank for withdrawing money from the account. What is IMPS? हाँ ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको स्टार करो। IMPS हमें पता होना चाहिए। Immediate payment service is an instant payment interbank electronic fund transfer system. Electronic fund transfer system, आजकल ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक बच्चों, है ना। आप यूपीआई पेमेंट भी करते हैं, है ना, यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, ये सिमिलर कनेक्टेड है। बैंक में ऑनलाइन पेमेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक एनईएफटी और एक आईएमपीएस। उसका एक अमाउंट का लिमिट होता है, यू कैन चेक, इट डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक, बट अमाउंट कंपैरेटिवली स्मॉलर होगा तो आईएमपीएस होता है, दैट हैपेंस इमीडिएटली, एंड एनईएफटी टेक्स लिटिल टाइम। अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर फॉर 24 आवर्स एंड कैन बी यूज्ड बाय द कस्टमर टू मेक द इमीडिएट ट्रांसफर्स। हु प्रिपेयर्स द बैंक पासबुक? पासबुक कौन बनाता है? बैंक बनाता है। कैश बुक कौन बनाता है? बिजनेसमैन बनाता है। Who sends the bank statement? Naturally, bank sends the bank statement. Why is BRS statement being prepared? Logically speaking, ideally speaking, कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस सेम होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। इसका डेबिट बैलेंस है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ द 2 रीजंस, टाइमिंग डिफरेंस एंड एरर्स मेड बाय आइदर ऑफ द पार्टीज, है ना। So that is why we prepare the bank reconciliation statement, that why that difference is appearing. कैश बुक का बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस क्यों है, ये समझने के लिए हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। So BRS is prepared to reconcile the balance as per cash book and the balance as per passbook on a particular date and explain the reasons for the difference. Who prepares the bank reconciliation statement? Businessman or accountant of the business.
On which side is interest on bank deposit is recorded in the passbook. अगर मेरा पैसा बैंक में डिपॉजिट होना है तो क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक होना चाहिए बच्चों. अगर बैंक में डिपॉजिट है और उसका इंटरेस्ट आया है तो मेरा बैलेंस बढ़ना चाहिए, मतलब क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट साइड. Which side of the cash book records when a check is received from its customer or debtor and deposited into bank? Again, पैसा आया है मतलब पासबुक में क्रेडिट और कैश बुक में डेबिट. चेक करो तो कैश बुक में डेबिट होना चाहिए. Is received from debtor, it is recorded on the debit side of the cash book, right? What does a debit balance in cash book represent? कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस और पॉजिटिव बैलेंस. पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल और पॉजिटिव. ये मैंने आपको मेरे नोट्स में यहां पे भी बताया है, देखिए चेक कीजिए, राइट. कैश बुक का ऑर्डिनरी बैलेंस, कैश बुक ऑर्डिनरी बैलेंस डेबिट बैलेंस. पासबुक ऑर्डिनरी बैलेंस क्रेडिट बैलेंस. कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस एंड पासबुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस डेबिट बैलेंस. पॉसिबली ये टेबल भी आप लिख लीजिए बच्चों. यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट इट डाउन. इट विल बी यूजफुल टू यू. वी आर मूविंग अहेड. ओके, डेबिट बैलेंस. व्हाट डज डेबिट बैलेंस इन पासबुक रिप्रेजेंट? कवर हो गया. अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट बैलेंस. What is bank overdraft? Overdraft का मतलब क्या होता है? The facility where bank allows their customer current account holder to withdraw amount in excess of the amount of deposit is known as overdraft facility. It is like a short-term credit facility given to the customer to meet his finances. याद रहे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट पे अवेलेबल होगा, सेविंग्स बैंक अकाउंट पे अवेलेबल नहीं होगा. तो प्लीज डू नॉट गो टू द बैंक इफ यू हैव अ सेविंग्स अकाउंट एंड आस्क दैट मेरे को ज्यादा पैसा विड्रॉ करना है. पॉसिबल नहीं होगा बच्चों, राइट. आपको अगर बैंक अकाउंट में आपका एसबी अकाउंट ओपन है और अगर आप 18 से लोअर है तो वो दैट विल बी ऑपरेटेड बाय योर हुएवर इज अ गाइड आपका जो भी है वही आपका अकाउंट यूज कर सकता है. यू डू नॉट हैव डायरेक्ट अथॉरिटी. एट द मोस्ट यू कैन अप्लाई, आई मीन यू कैन यूज सम UPI services if at all that is available to you on your number, right? So business account will be current account, personal account will be savings bank account. So hereby I am ending the session of objective. I am sure ये आपको समझ में आया होगा. कंसेप्ट समझने की कोशिश करना. कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग यूज में आते हैं. BRS is one of the chapters, right? Wish you all the best. Perform well in the examination. Any doubt, conceptual doubt, you can revert back at available time. I will respond to you. Thank you. Take care. Have a nice day.